افغان طالبان آخرکار گھٹنوں کے بل بیٹھنا شروع ہو چکے ہیں۔ آج افغان طالبان کی جانب سے ایک بہت بڑی آفر بھی کی جا چکی ہے۔ ناظرین، اس وقت افغانستان کے اندر بھی افغان طالبان کے خلاف ایک بہت بڑی نئی لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ایک امریکی وفد بھی کابل پہنچ چکا تھا، اور افغان طالبان سے کون سا انہوں نے بہت بڑا ایک ڈیمانڈ سامنے رکھا ہے افغان طالبان کے، یہ جان کر آج کے پروگرام میں آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ آج تاریخ ہے 27 دسمبر بروز ہفتہ 2025، اور میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین باقری۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر کے کمنٹ سیکشن میں ہمیشہ کی طرح اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی جو فیڈ بیک ہے ناظرین، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوحہ اور اس کے بعد استنبول میں مذاکرات ہوئے، وہ بھی ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد سعودی عرب میں بھی ایک سفارتی کوشش کی گئی، لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں مل سکے۔ پاکستان کی جانب سے واضح مذاکراتی عمل کے دوران بھی یہی موقف پاکستان کی جانب سے سامنے رکھا گیا تھا کہ جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف جو استعمال ہو رہی ہے، آپ بس اپنی سرزمین استعمال ہونا نہ دے دیں پاکستان کے خلاف۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کیا گیا تھا پاکستان کی جانب سے کہ اس وقت افغانستان کے جو سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخنزادہ، وہ یہ ایک فتویٰ بھی دے دے کہ یہ جو پاکستان کے خلاف کوئی بھی لڑتا ہے تو یہ جہاد نہیں بلکہ یہ فعل حرام بجا لانے کے مترادف ہے، تو یہ فتویٰ بھی آپ سامنے رکھیں۔ اور پاکستان نے کہا تھا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان بارہا ثبوت بھی مذاکراتی عمل کے دوران جس طریقے سے دوحہ میں سامنے رکھا، اسی طرح استنبول میں بھی، اور پھر سعودی عرب کو بھی یہ فراہم کر چکے تھے۔ جس طرح ترکیہ اور قطر کے تعاون سے مذاکراتی عمل آگے بڑھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے کوشش کی ثالثی کے حوالے سے انہوں نے آگے بڑھانے کی بات کی، لیکن اس میں بھی پاکستان نے ٹھوس ثبوت سامنے رکھے، لیکن مذاکرات پر افغان طالبان کی جانب سے ہٹ درمی کی گئی، اور یہ مذاکراتی عمل ناکام ہونے کے بعد ناظرین اکتوبر 2025 سے لے کر آج تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر کے مختلف جو پوائنٹس ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں، اور اسی وجہ سے تجارتی عمل بھی رک گیا، اور افغانستان میں آئے روز مہنگائی میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم اس حوالے سے رپورٹ بھی کر چکے ہیں، اور وہاں لوگوں کے لیے کئی میڈیسنس نہ ملنے پر بھی اس وقت دشواریوں کا سامنا ہے، تو یہ سلسلہ ابھی اس وقت جاری ہے۔ اسی دوران ناظرین، افغان طالبان کی جانب سے مسلسل یہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغان طالبان نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے بارڈر پوائنٹس کو مکمل طور پر بند رکھیں گے، اور پھر تاجروں کو افغان طالبان نے کہا کہ آپ تجارت کے لیے دیگر مواقع تلاش کریں، اور آپ پاکستان کو چھوڑ دیں، بھول جائیں، یہ پوائنٹس ہم نہیں کھولیں گے۔ لیکن آج افغان طالبان کی جانب سے ایک بار پھر دوبارہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک آفر انہوں نے خود کر دی ہے، اور یہ آفر کی ہے ناظرین کابل میں پولیس اکیڈمی کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو سراج الدین حقانی ہے، وزیر اس وقت داخلہ ہیں، انہوں نے سراج الدین حقانی نے یہ آج انہوں نے اپنے خطاب میں پاکستان کا نام خیر نہیں لیا، لیکن پاکستان کا نام نہ لیتے ہوئے مخاطب وہ پاکستان سے ہی تھے۔ وہ کیسے، ذرا سنیے۔ سراج الدین حقانی نے کابل پولیس اکیڈمی کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے، بات چیت کا راستہ کھلا ہے ہماری طرف سے، اور کہا ہے کہ مسائل کا حل تصادم نہیں بلکہ مذاکرات میں ہے۔ افغان حکومت اس حوالے سے سنجیدہ کوششیں اس وقت بھی افغان طالبان یعنی افغان حکومت کی جاری ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ افغان طالبان دوحہ معاہدے کے تحت کیے گئے وعدوں پر قائم ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات دیگر ممالک کے ساتھ بہتر سے بہتر ہو۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر دوحہ میں کیے گئے جو معاہدے کے تحت اگر افغان طالبان مذاکرات پہ بلیف رکھتے ہیں، تو پاکستان کے ساتھ ہونے والی کشیدگی کے دوران سیز فائر پر جو بات ہوئی تھی، یقین دہانی جو کروائی گئی تھی افغان طالبان کی جانب سے کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اور کہا گیا کہ ہماری سرزمین تو استعمال ہی ہم ہونے نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد 25 اکتوبر سے لے کر اب تک ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پشاور میں جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پر جو حملہ ہوا، وہاں بھی خودکش حملہ آور جو تھے ان کی شناخت افغان شہریوں کے طور پر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد میں کچہری میں جو خودکش حملہ ہوا، وہ حملہ آور اور اس کے صورتکار اکثر جو ہیں وہ خودکش حملہ آور تو افغان شہری نکلے۔ پھر اس کے علاوہ وانا کیڈٹ کالج میں حملہ ہوتا ہے، اس کو اپریٹ پوری انسٹرکشن ہدایات جو مل رہی تھی وہ افغانستان سے مل رہی تھی، حملہ کرنے والے بھی میجورٹی میں اس میں افغان شہری تھے،
اور ابھی بھی सरहद से यही सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आ चुकी है नाज़रीन, वो ये है कि ज़िला लकी मरवत के का थाना सिराय नूरंग के इलाके तख्ती खेल में दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में 2 पुलिस एहलकार समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। बाद में इलाज के दौरान जो है एक पुलिस जो जख्मी था वो शहीद हो जाता है। फिर एक शहरी भी शहीद हो चुका है। लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला होता है और 6 दहशतगर्दों को वासिल जानदम करने में पुलिस के एहलकार जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं। अब ये सारे जो चीजें इस वक्त दहशतगर्दी कार्रवाई हो रही हैं, ये कौन है? ये हाफिज गुल बहादुर का जो ग्रुप है वो है। और फिर इसके साथ साथ दीगर जो पाकिस्तान में एक्टिव नूर वली मसूद का जो ग्रुप है, इसी तरह दीगर ग्रुप्स हैं, ये तमाम एक्टिव हैं और ये दहशतगर्दी कार्रवाई कर रहे हैं। और इन सबको ऑपरेट अफगानिस्तान की सरजमीन से किया जा रहा है। ये नूर वली मसूद ग्रुप, ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, ये कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में ही तो है। ये ठिकाने उनके वहां मौजूद हैं। बारहा पाकिस्तान ठोस शवाहिद के साथ साथ दुनिया की बड़ी बड़ी इस वक्त आने वाली रिपोर्ट्स में इंकशाफ हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में इंकशाफ हो रहा है नाज़रीन। तो अब ये इनको बाकायदा फंडिंग भी की जा रही है। हमने कल के वीलॉग में आप लोगों को बताया था कि नूर वली मसूद ग्रुप के लिए सिर्फ और सिर्फ हर माह जो है अफगान तालिबान $40,000 से $45,000 जो हैं वो पे करते हैं। वो किस लिए? उनके खर्चे के लिए, यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए जो जंगजू हैं उनको पे किया जाता है। और अफगान तालिबान को पैसे कौन दे रहा है? अमेरिका आज भी फंडिंग कर रहा है। हम इस पर एक तफसीली प्रोग्राम भी आपके सामने हम रखेंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त जारी है। तो अफगान तालिबान की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहले ये तो यकीन दहानी करवाएं कि जो कार्रवाइयां आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है ये तो होना ना दे दें। अब ये जो कह रहा है कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही है, भाई आज भी यही कार्रवाइयों के तमाम इंस्ट्रक्शन वहां से मिल रही हैं। नूर वली मसूद, हाफिज गुल बहादुर और गिलगित के बाबूसर टाप तक जो कमांडर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम नूर वली मसूद के बैयत में हैं और नूर वली मसूद कहता है कि हम हिबतुल्लाह खुदजादा के बैयत में हैं। तो भाई आपका सुप्रीम लीडर है, वो इनको रोके, कहें कि लड़ना हराम है, कल ही रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे बड़ी गेम्स हैं। अब आगे आप सुने कि कतर का क्या इसमें रोल है। कतर कैसे पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेल रहा है, ये आप जानकर हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, आज ये डॉन न्यूज़पेपर में सीनियर सहाफ़ी हैं ताहिर खान, जो अफगान उमूर पर गहरी उनकी नज़र भी है, उनकी एक स्टोरी सामने आई है और ये इस स्टोरी में उन्होंने कहा है कि एक अमेरिकी वफद ने हाल ही में काबुल का दौरा किया है और वफद की क़यादत जो है अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची बराए यरगमालियों के जो उमूर हैं अडम बॉलर ने एडम बॉलर ने इसकी क़यादत की है और ये 7 माह में जो बॉलर हैं इसका ये दूसरा दौरा है काबुल का। अब इस दौरे के दौरान अमेरिका की जानिब से ये डिमांड सामने रखा जा चुका है कि बहुत से कैदी अमेरिकन अभी भी अफगान तालिबान के पास मौजूद हैं। तो ये कहा गया है कि उन यरगमालियों को दीगर यरगमालियों की तरह छोड़ा जाए, क्योंकि यरगमाली तो जो कैदी थे उनको छोड़ने का सिलसिला तो शुरू हुआ था अफगान तालिबान और अमेरिका की एक अंडरस्टैंडिंग के साथ वाशिंगटन की, लेकिन पिछले कुछ अर्से से उसमें कुछ ताख़ीरी का सिलसिला जारी है। तो ये 7 माह में दूसरा एक इनका राउंड जो है वो चक्कर लगा है काबुल का और फिर कहा है कि इनको छोड़ा जाए। तो ये इसीलिए डिमांड किया जा रहा है कि कैदियों को फौरी तौर पर छोड़ा जाए और ये भी कहा गया है कि अगर आप लोग हमारे कैदियों को रिहा करते हैं और अपने रवैये में बेहतरी लाते हैं तो फिर आप लोगों के साथ ताल्लुकात वाशिंगटन के बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अफगान तालिबान भी बड़े इसमें चालाकी का मुज़ाहिरा करते हुए उन्होंने भी कुछ डिमांड्स अपने सामने रखे हैं और अफगान तालिबान की जानिब से ये उनकी ख्वाहिश है, कोशिश है कि कह रहे हैं कि हमें तस्लीम किया जाए, हमें तस्लीम किया जाए। पहले अपनी हरकत और सकनात हमसायों के साथ ठीक रखें। पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई चल रही है। ईरान आप पे बिलीव नहीं करता है। सबसे ज़्यादा जो अफगान महाजिरीन को मुल्क से निकालने वाला मुल्क वो ईरान है। फिर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। ताजिकिस्तान के साथ आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर नहीं है। कल भी बॉर्डर पर फायरिंग से 2 ताजिक फौजी मारे जा चुके हैं और वो टेररिस्ट जो थे वो तालिबान वो अफगानिस्तान की सरहद से आए थे। फिर इससे पहले आपकी सरजमीन से एक जो है ड्रोन हमला होता है, जो ताजिकिस्तान की साइड में 5 चीनी शहरी जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। और फिर साथ-साथ इसी तरह जो है उज़्बेकिस्तान के साथ आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। बताएँ हमसायों के साथ ही आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, तो कैसे दुनिया आप लोगों को तस्लीम करेगी? पहले अपने रवैये में तब्दीली की ज़रूरत है।
तो अमेरिका से फिर साथ-साथ तालिबान ने ये भी डिमांड किया है कि मोहम्मद रहीम नामी एक शहरी है, उसको रिहा करें। मेरे ख़्याल में ये अब सिर्फ़ एक ही शख़्स रह गया है उनके पास रिहा करने के लिए, तो इसका डिमांड किया गया कि इनको छोड़ा जाए। अच्छा, ये जो मोहम्मद रहीम नामी जो शहरी है, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये 2007 में लाहौर से इसको गिरफ़्तार किया गया था और फिर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने इसको गिरफ़्तार करने के बाद फिर इसको सीआईए के हवाले कर दिया। सीआईए के हवाले करने की वजह ये थी कि वो अमेरिका के लिए मतलूब था और मतलूब इसलिए था कि अमेरिका का ये कहना था कि ये अल-कायदा का सरगना एक वो था, इनका बंदा था, लीडर था, जो अल-कायदा की जो लिटरेचर है, उसको वो उर्दू और दीगर ज़बानों में ट्रांसलेट करके जो हैं, वो फैलाते थे। तो उनके लिए मतलूब था, तो सीआईए के हवाले किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि अब जो अफ़गान तालिबान है, वो बज़िद हैं कि इसको छोड़ा जाए। अब एक और चीज़, ये जो डिमांड सामने आई है और फिर ये वफ़द जो पहुँचा है नाज़रीन, मालूम है ये वाशिंगटन या फिर अमेरिका से ये वफ़द नहीं आया है, बल्कि ये वफ़द आया है कतर से। कतर ने जहाज़ दिया है इन अमेरिकन इस वफ़द को काबुल पहुँचने के लिए। जहाज़ किसका है? कतर का है। अब आप खुद अंदाज़ा करें, कतर क्यों आखिरकार चाहता है कि अफ़गान तालिबान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो, मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ जाएँ, अफ़गान तालिबान पर सख्ती कम हो जाए। वो इसलिए नाज़रीन हम पहले भी कह चुके हैं, कतर के दोहरे मियार के हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर दोबारा आपकी याद दहानी के लिए कि कतर अफ़गान तालिबान के साथ बहुत करीब है और कतर चाहता है कि अफ़गान तालिबान को किसी तरीके से पावरफुल किया जाए। वो पाकिस्तान को भी टफ़ टाइम देना चाहता है और अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इसको इस्तेमाल करने के लिए। और आप लोगों को मालूम है कि कतर की मीडिया भी अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। तो ये सूरत-ए-हाल इस वक़्त जारी है। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार लाज़मी करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।